So okay guys, we'll do the second part of the tissues. In my previous video I have explained you plants tissue. Now we will discuss about animal tissue. Animal tissue. See, whole animal tissue is broadly derived in 4 parts. One, we can say connective tissue. Of course epithelium होता है. Second, epithelium tissue. Third, muscular tissue. And fourth, nervous tissue. Okay. So animal tissues is broadly divided into 4 parts: connective, epithelium, muscular and nervous. What is epithelium? First we'll discuss of epithelium. Epithelium is nothing but a cover for the organs. Why we put cover? For the proper protection, isn't it? अब देखिए, प्लांट्स का जो कवर होता है उसको कहते हैं एपिडर्मिस. प्लांट्स का जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस. एंड एनिमल्स में जो कवर होता है उसको कहते हैं एपिथेलियम. ठीक है. दिस एपिथेलियम इज ऑफ 3 टाइप्स. This epithelium is of 3 types. One, squamous epithelium. One is squamous, S-Q-U-A-M-O-U-S. Squamous epithelium. Squamous epithelium कैसे होता है? एक पतली सी परत, एक कवर, पतला सा झिल्ली जैसा कवर होता है. ये कवर है. These are the cells. All cells are combinedly joined and they made a tissue. So that is एक लेयर होती है, that is squamous epithelium. और सेकंड होता है cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium तो क्यूब स्ट्रक्चर में होता है इसका कवर. जैसे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे 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 इसका कवर. ये भी पतला सा लेयर होता है. ठीक है. यहाँ भी सेल्स होते हैं. तो ये पूरे सेल्स होते हैं. एक बॉक्स टाइप का है ना. अगर एक पतला सा पेपर को अगर कवर करना है उसको हम लैमिनेशन करेंगे. और थोड़ी बड़ी चीज के तो इसके लिए बक्सा टाइप का लाएंगे. सेम थिंग. और थर्ड टाइप का कवर होता है एपिथेलियम मीन्स कवर, लैमिनेशन टू प्रोटेक्ट. और एक होता है कॉलमनर, COLUMNAR, कॉलमनर एपिथेलियम. ये लंबा लंबा पाइप जैसे होता है, कॉलम के रूप में आता है. जो नर्व्स वगैरह जो बड़े बड़े हैं ये सब इसमें ये होते हैं. ठीक है. एक पिलर्स जैसे होते हैं, एक क्यूब शेप में होते हैं. तो इन ऑल दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेयर्स एपिथेलियम. इज दैट क्लियर? यू जस्ट कॉपी इट and we will go for the another, that is connective tissues. See, connective tissues बहुत important part है connective tissues इसका. तो हम लोग क्या करते हैं, connective tissues के बारे में पढ़ लेते हैं. Connective tissues. Water comes under this connective tissues. सबसे पहला होता है blood. Blood is a connective tissue because it connects the entire body. जो part भी काटो blood निकलेगा. So whole part of the body contains blood. So blood connects each and every organ. Why? Because blood carries oxygen, blood carries all the prepared food and it gives energy and it supplies energy to every. तो ये काम करता है blood. So blood is a connective tissue. You know blood एक मीडियम होता है. ये सब मीडियम के तहत इसका ब्लड का एक मीडियम होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा. ब्लड मीडियम इज कॉल्ड प्लाज्मा. हर किसी का एक मीडियम होता है. ये एक प्लाज्मा के तहत ये अपना काम करता है. सेकेंड, बोन. बोन ऑल्सो connects all part.
See, here is one bone, here is one bone, here is one bone. So different bones, many types of bones is connected to the entire part of the body. So bone is also a connective tissue. Now what is third part? Third part is called cartilage. Then fourth, ligaments. Then tendons. Then adipose. Then seventh part is areolar. A-R-E-O-L-A-R. Areolar. Now cartilage. So let me explain you. हम लोग बोन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। है ना, ये बोन है, मान लेते हैं, ठीक है। सो there is a joint between two bones. So before the joint there is a soft bone होते हैं, that is called cartilage. Cartilage का मतलब होता है soft bone. You see the bone, कान में जो है वो बोन कार्टिलेज है, नाक के बीच का जो बोन है वो कार्टिलेज है. सो कार्टिलेज मीन्स अ सॉफ्ट बोन. कार्टिलेज मीन्स सॉफ्ट बोन. नाउ व्हाट इज लिगामेंट्स? सो लिगामेंट्स ये जो पोर्शन है बोन टू बोन को कनेक्ट करता है लिगामेंट्स. सो वी कैन राइट कनेक्ट्स बोन टू बोन को जो कनेक्ट करता है, दो बोन के बीच में जेल टाइप का सब्सटेंस कुछ होता है, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट्स. हमारे घुटने के नीचे और घुटने के ऊपर एक लिगामेंट्स होता है, ये और ये बीच में यहाँ लिगामेंट्स होता है, सो दैट वी कैन ईजीली मूव आवर हैंड स्मूथली, वी कैन मूव द हैंड. सो ये सॉफ्ट बोन, ये बोन और बोन के बीच का जो जॉइंट होता है दैट इज लिगामेंट्स. व्हाट आर टेंडन्स? मेनी मसल्स, कई सारे मसल्स आके हमारे इस बोन के साथ अटैच्ड है, सो दैट इज कॉल्ड टेंडन्स. सो टेंडन्स क्या होता है? मसल्स टू बोन. एक शॉर्टकट BTB पढ़ सकते हैं हम लोग और ये MTB पढ़ सकते हैं हम लोग. सो कई सारे मसल्स, और यही मसल्स हमारे हड्डी में दर्द वर्द होता है तो ये मसल्स मैसेजेस कैरी करते हैं, एंड सो दैट वी कैन नो दैट यस आई एम गेनिंग पेन इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी. नो व्हाट आर एडिपोज? एडिपोज होते हैं फैट्स. फैट्स टिश्यूज भी कनेक्ट हुए हैं हमारे एंटायर बॉडी से. कई टिश्यूज, कई सारे चीज़ें हमारे कनेक्ट किए हुए थ्रू फैट से. एरियलर, ये जो स्किन है, स्किन के अंदर वाला लेयर उसको पकड़ के रखा है, कनेक्ट किया हुआ है स्किन का. सो दैट इज ऑल्सो एरियलर. एरियलर क्या था? बिलो द स्किन इट कनेक्ट्स. बिलो द स्किन में रहता है, एक कनेक्टिव पार्ट में जाता है, isn't it? So these are all connective tissues. मेन ब्लड, इन सब में एक मीडियम होता है, उस मीडियम को हम कहते हैं मैट्रिक्स, और एक एक अलग अलग मीडियम होता है. मैट्रिक्स इज ए मीडियम. इसमें जैसे प्लाज्मा एक मीडियम है, उसी तरह बोन में भी एक तो कैल्शियम एक तो मीडियम है. हर चीज़ में एक एक मीडियम होता है. दैट इज़ नॉट नेसेसरी नाउ. व्हेन यू विल गो टू द हायर क्लासेस देयर यू विल सी व्हाट आर द मीडियम्स प्रेजेंट इन द ईच पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज. तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है हमारे एंटायर बॉडी से. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज. ओके, now we will go for another. So we have done two things. One, we have done epithelium tissue, then connective tissue. अब आते हैं muscular tissue. What is muscular? Muscles. हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में मसल्स अटैच्ड हुए हैं. मसल्स भी कई प्रकार के होते हैं मस्कुलर टिश्यू में. एक होता है स्ट्रेटेड मसल्स, ST, RAI,
TED एक स्ट्रेटेड मसल्स होता है, और दूसरा हमारा होता है स्मूथ मसल्स होता है, और एक होता है थर्ड पार्ट होता है कार्डियक मसल्स होता है, कार्डियक मसल्स होता है। सो दीज आर द मसल्स। मसल्स भी हमारे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टिश्यूज के ही यही है। सो मसल्स। एंड लास्ट है हमारा नर्वस। नर्वस का क्या होता है? NERVOUS, नर्वस। यू सी एंटायर बॉडी, हमारी ह्यूमन बीइंग का एंटायर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। सो ब्रेन हैज सम सिस्टम विच कंट्रोल्स ऑल द बॉडी, isn't it? फॉर एग्जाम्पल, जैसे नर्वस क्या कहते हैं, नर्वस के यहाँ पर हमारे एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड इज ए जंक्शन बॉक्स वेयर ऑल द मैसेजेस फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इट कैरीज हियर, एंड फ्रॉम देयर वहाँ से हमको कहाँ भेजना है, बिकॉज ब्रेन हैज 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला, एंड विच मैसेज हैज टू pass in which part of the brain the spinal cord does. For example, what happens, suppose we are just walking on the ground, we got some hurt in the toe, immediately we shout, oh God, what happened? With pain we shout or we dance, isn't it? Now this is what we can see, but what actually happens there when you got hurt, that whole message will carry by the nerves, and it will go to my brain, my spinal cord, and from there it will go to my brain, and the brain will detect what had happened actually. It will inform us that my toe was hit by a stone, by some what you call a thorny stone, and so I got hurt. And then it will give message that I got hurt through so and so, full complete message it will send to me, and at that time I will come to know that something had happened in my toe, then I will see, then I will shout. See, lots of work goes on between your hurt and your shout, but the moment we got hurt, immediately we shout, immediately we just pain से हम लोग दुख से चिल्लाते हो वहाँ करके। बट कितना होता है, आपका चोट का पूरा इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में जाएगा, कंप्लीट बताएगा कि क्या हुआ, क्या चीज़ लगा, कहाँ लगा, दर्द महसूस होगा, उसके बाद हम उसको चिल्ला बैठते हैं। लॉट्स ऑफ केमिकल वर्क्स गोज ऑन इनसाइड, बट यहाँ हमको चोट लगती ही चिल्ला बैठते हैं। कितना फास्ट वर्क होता होगा। दैट ऑल वर्क इज डन बाय द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मेन चीज होता है न्यूरॉन सेल्स होते हैं। न्यूरॉन सेल्स इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। न्यूरॉन सेल्स होते कैसे हैं? आपका एक न्यूरॉन बना लेते हैं हम लोग। दिस पार्ट इज कॉल्ड द सेल बॉडी। ओके, दिस इज सेल बॉडी। हियर nucleus. These are called dendrites. This part is called axon, and ये जो होता है इसको कहते हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग। सो दिस इज अ न्यूरॉन सेल है जो हमारे नर्वस सिस्टम में होते हैं। सो एक न्यूरॉन सेल, दूसरा न्यूरॉन सेल, तीसरा न्यूरॉन सेल होते हैं, एंड द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन सेल्स, यहाँ पे मैसेजेस जाती हैं, इट क्रिएट्स ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। एक मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के द्वारा ट्रांसफर होती है, एंड इट कैरीज फ्रॉम अनदर neuron cell. So there is a gap between one neuron cell to another neuron cell, and that gap is called synapses. Synapses is a gap present in between two neurons. A gap in between two neurons is called synapses. So the messages goes through electrical impulses. So I think this what whole complete tissue chapter is finished. So this as the overall structure of the chapter. You go through it, you again rewind my whole video from the beginning, you see 2 times 3 times, so that because by seeing this video you will be well acquainted with what
has actually contained in the chapter, because reading question answers is not enough. You have to go through the chapter also, each and every part you should be able to understand it. So after watching my videos, you please do read the lessons, so that you will automatically you can understand what actually tissues are. So we will meet you in the another video. Till then, goodbye.